ایک نواب کی پر اسرار تلسماتی دنیا کی آپ بیتی، محبت اور نفرت کے تصادم، نیکی اور بدی کی کشمکش کی داستان۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار تلسماتی دنیا کی آپ بیتی، ایپیسوڈ نمبر 20۔ آج جب میں عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکا ہوں، اپنی اس وقت کی کیفیت کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں بزدل اور ڈرپوک بن گیا تھا، اور اسی بزدلی اور خوف زدگی کو چھپانے کے لیے ڈاکو بنا تھا۔ میں نے اس شام شفق کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ میں بہت دلیر آدمی ہوں اور مجھے ڈاکو ہی بننا تھا۔ استاد، میں نے اس رات تاجے سے کہا، ڈکیتی کی اگلی واردات میں مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنا۔ نہیں پٹھے، تاجے نے کہا، ابھی نہیں، میں تمہارے لیے آسان جگہ دیکھوں گا۔ ایک آسان جگہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں استاد، میں نے کہا۔ میں اپنے باپ کا گھر خالی کرنا چاہتا ہوں، جو دراصل میری سوتیلی ماں کا گھر بن چکا ہے۔ مجھ سے باپ کا پیار اور گھر کا سکون اس جوان اور خوبصورت لڑکی نے چھینا تھا جو میرے گھر میں میرے باپ کی بیوی بن کر آئی تھی۔ اس نے مجھے اغوا کرایا، میں اسے اغوا کر کے لے آؤں گا۔ اسے اغوا نہیں کرنا، تاجے نے کہا، مصیبت بن جائے گی۔ لوٹ مار کر سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ واردات تمہارے لیے آسان ہوگی کیونکہ تم اس گھر سے واقف ہے۔ چلو، وہیں سے تمہاری آزمائش ہو جائے گی۔ میں تمہیں 3 آدمی دوں گا۔ میں تم سے ایک کام کی اجازت مانگتا ہوں استاد، میں نے کہا۔ میں اپنے باپ کو قتل کروں گا۔ اتنی سی بات میرے منہ سے نکلی تو میرا جسم اندر سے جلنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ میرا چہرہ بھی سرخ ہو گیا ہوگا اور میری آنکھیں بھی۔ غصے اور انتقام کے جذبے کی شدت سے میرے دانت پسنے لگے اور میری مٹھیاں اپنے آپ بند ہو گئیں۔ میں نے دانت پیس کر کہا، میں اس بدکار باپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اپنی بدکاری پر شرافت کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ اسے اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ اس کا اکلوتا بیٹا کس حال میں ہے۔ اسے یہ بھی ہوش نہ تھا کہ جسے وہ اپنی دوسری بیوی بنا کر لایا ہے، وہ اس کے گھر میں کتنے آدمیوں کی بیوی بنتی ہے۔ میں تمہیں اس ایک قتل کی اجازت دیتا ہوں، تاجے نے کہا، لیکن ایک بات سن لو، اپنی عقل کو ٹھکانے رکھنا۔ اگر تم وہاں بے قابو ہو گئے تو پکڑے بھی جا سکتے ہو۔ تاجے نے مجھے 3 آدمیوں کے نام بتائے جنہیں میرے ساتھ جانا تھا۔ میرا شہر وہاں سے تقریباً 120 میل دور تھا۔ ہمیں ریل گاڑی پر وہاں تک جانا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے پہچانا جا سکتا تھا۔ تاجے نے اس کا یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ اس وقت کا سفید برقع منگوا لیا۔ بھیس بدلنے کے لیے اس قسم کی چیزیں ان لوگوں کے پاس موجود رہتی تھیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ میں 3 آدمیوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ میں سفید برقعے میں تھا، میرے پاؤں میں دیسی جوتی تھی اور میں زنانہ ڈبے میں بیٹھ گیا۔ انہی دنوں میری مسیں بھیگی تھی جو استرے سے صاف کروا دی تھی۔ ان دونوں ریل گاڑیوں میں رش نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس ڈبے میں 5-6 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے چہرے سے برقع اس طرح ہٹایا کہ میری صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ عورتوں نے میری طرف بار بار دیکھا۔ ان میں سے 1-2 سرک کر میرے پاس آ گئیں اور پوچھنے لگی کہ میں کہاں جا رہی ہوں، شادی ہو گئی ہے یا ابھی کنواری ہوں۔ میرے سامنے یہ مسئلہ آ گیا کہ میری آواز مردانہ تھی، بلکہ اتنی بھاری تھی جتنی میرے عمر کے نوجوانوں کی نہیں ہوا کرتی۔ میں آواز کو باریک کر سکتا تھا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ باریک آواز میں زیادہ باتیں کرتا۔ آواز کو عورتوں جیسا بنا کر اسے ایک جیسا رکھنا بہت ہی مشکل تھا۔ یہ عورتیں مجھ سے میرے متعلق پوچھتی رہیں اور میں مسکراتا رہا اور شرمانے کی ایکٹنگ بھی کرتا رہا۔
लेकिन मैं सोचता ये रहा कि इन औरतों से निजात किस तरह हासिल करूं। मुझे मुस्कुराता शर्माता देखकर दूसरी औरतें भी मेरे करीब आ गईं। अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आ ही गई। अरे तू बोलती क्यों नहीं? एक उधेड़ उम्र औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे हिलाकर कहा, या कानों से बहरी है। पठान, मैंने औरतों जैसी आवाज में कहा। पश्तो? और फिर उनकी तरफ उंगली करके कहा, ना ना ना, पश्तो पश्तो। मैंने देख लिया था कि ये अनपढ़ और इंतहाई मामूली औरतें हैं। ये 3rd क्लास का डब्बा था। औरतें समझ गई कि मैं पठान लड़की हूँ और मैं पश्तो के सिवा और कोई जुबान नहीं जानती। हिंदुस्तान के इस इलाके में पठान कभी कभार नजर आता था। पठानों की बातें मशहूर थीं, मसलन ये कि पठान अपने इलाके में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये कि पठान जंगजू हैं और वो गैरतमंद और खूबसूरत होते हैं। पठानों की मतलब ऐसी कहानियाँ सुनी सुनाई जाती थीं जैसे वो दूसरे इंसानों से बहुत मुख्तलिफ और बरतर मखलूक हों। उन औरतों ने मेरे मतलब बातें शुरू कर दी। वो सब हिंदू थीं। मैं हैरान थी कि इतनी खूबसूरत आंखें किसकी हो सकती हैं। एक औरत ने कहा, पठान औरतें होती ही ऐसी हैं। रंग देखो, एक और बोली, इतना प्यारा रंग रूप पठान औरत का ही हो सकता है। उसके पास खंजर या चाकू जरूर होगा। एक और औरत ने कहा, कहते हैं कि पठान औरत को कोई छेड़े तो वो खंजर या चाकू निकालकर उस आदमी का पेट फाड़ देती है। वो मुझसे दूर हट गईं और इकट्ठी जा बैठी। गाड़ी के शोर की वजह से इतनी दूर से मैं उनकी बातें नहीं सुन सकता था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनमें से एक दो औरतें मेरी तरफ देखती और मुंह फेर लेती। गाड़ी पहले स्टेशन पर रुकी तो मेरा एक साथी मुझे देखने आया। तब मुझे एक और ख़तरे का एहसास हुआ। मेरे साथियों ने मेरे साथ उर्दू या पंजाबी ज़ुबान में बात करनी थी, जिससे मेरा भांडा फूट जाता। मैं खिड़की के साथ बैठा हुआ था। मैं अपने साथी को आता देख लिया। बुरके में से हाथ निकालकर मैंने अपने होंठों पर उंगली रखी। वो घबरा गया। मैंने सर के इशारे से उसे अपने पास बुलाया और सरगोशियों में उसे बताया कि मैंने इन औरतों को बताया है कि मैं पठान हूँ और पश्तो के सिवा कोई और ज़ुबान नहीं समझती। मेरे साथ कोई बात ना करना। मैंने कहा, ऊंचा ना बोलना और मेरी फिक्र ना करो, बार बार इधर ना आना। वो चला गया तो औरतों ने इशारों से मेरे साथी के मतलब पूछना शुरू कर दिया। खामंद, भाई, बाप। मैं मुस्कुराती रही। मैंने आखिर कहा, गुलाम, नौकर। और मैंने ये दोनों अल्फाज इस तरह कहे जैसे बड़ी मुश्किल से कहे हों। किसी बड़े खानदान की बेटी है, एक औरत ने कहा, नौकर को साथ लाती है। गाड़ी चलती रही। औरतें स्टेशनों पर उतरती और नई औरतें सवार होती रहीं। पहले से बैठी हुई कोई औरत नई औरतों को बता देती कि यह पठान लड़की है, पश्तो के सिवा कोई ज़ुबान नहीं जानती। इस तरह मैं कई घंटे सफ़ेद बुरके में लिपटा हुआ अजूबा बना रहा। मेरे शहर में गाड़ी रात 9 बजे के लगभग पहुंची। रेलवे स्टेशन के बाहर छोटे छोटे होटल थे। मैं अपने साथियों को वहां ले गया और उस होटल में चले गए जिसमें अलग कमरे थे। 2-3 ही कमरे थे। मेरे साथियों ने होटल वाले को बताया कि उनके साथ एक औरत है और रात 12 बजे के बाद तक रुकेंगे। खाना खाकर मैंने अपने साथियों को बताना शुरू कर दिया कि मेरा मकान कैसा है और वहाँ से क्या क्या मिलने की तवक्के है। रात का 1 बज रहा था। मैं बुरके में अपने 3 साथियों के साथ होटल से निकला। अपने शहर की अंधेरी गलियों से मैं वाकिफ था। मैं उन्हें ऐसी ही एक गली में ले गया जहाँ मैंने बुरका उतार कर लपेटा और अपने एक साथी को दे दिया। फिर मैंने अपने नेफे पर हाथ फेर कर खंजर को महसूस किया जो नेफे में उड़सा हुआ था। दिल में इरादे को पुख्ता किया कि अपने बाप को कत्ल करना है। शहनाज को मेरे तीनों साथियों के हाथों बेआबरू होना है और फिर उस घर में से जेवर और जितनी रकम मिली उठा लानी थी। मेरे दिमाग पर शैतान का कब्जा हो चुका था और शराब ने उस कब्जे को पक्का कर दिया था। ऐसे लगता था कि जैसे मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
اب اپنے آپ ہی دماغ سوچتا اور فیصلے کرتا جا رہا تھا۔ مجھے ایک بار 9ویں جماعت کے ایک ماسٹر نے کہا تھا کہ مجھ میں اپنے باپ کی عمر جتنے آدمیوں کی عقل ہے۔ اس نے ایک بار مجھے عمر سے زیادہ دانشمند کہا تھا۔ خواجہ صاحب نے میرے متعلق یہی رائے دی تھی، اور اب جب میں قتل اور ڈکیتی کی پہلی واردات کرنے جا رہا تھا تو میں خود محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنی عمر سے زیادہ دانشمند ہوں، لیکن اس دانشمندی کو شیطان استعمال کر رہا تھا۔ کیا میں شیطان کے ہاتھوں مجبور ہوں؟ نہیں، میں نے اپنے آپ کو خود ہی شیطان کے سپرد کر دیا تھا۔ میں آپ کو اپنی مجبوریوں کی اور اپنی مظلومیت کی کہانی نہیں سنا رہا۔ میں کوئی رونا نہیں رو رہا۔ میں بتا رہا ہوں کہ انسان جو راستہ اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان اپنی دانشمندی کو اور خدا کی دی ہوئی قوتوں کو کس طرح ضائع کرتا ہے۔ جذبات کا کھیل دیکھیں کہ جب میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو مجھے ہچکی سی آئی اور کوئی چیز اچھل کر میرے حلق میں اٹک گئی۔ میں اس گلی میں کھیلا کرتا تھا۔ دیر ہو جاتی تو ماں دروازے میں سے آ کر مجھے آواز دیا کرتی تھی۔ میں باپ کی انگلی پکڑ کر اس گلی میں سے گزرا کرتا تھا۔ لوگ مجھے محلے کا سب سے پیارا بچہ کہا کرتے تھے۔ مجھے گلی میں داخل ہوتے ہی اپنے ہم جولیوں کا شور و غل سنائی دیا۔ ان کے کہکے سنائی دیے۔ اپنے دل کے آئینے میں مجھے اپنا بچپن، لڑکپٹن اور ہم جولی نظر آئے۔ مجھے ہچکی سی آئی۔ جذبات طوفان کی مانند اٹھے اور ایک گولا سا میرے دل میں اٹک گیا۔ یہ کشادہ گلی تھی۔ دوسرے سرے پر ایک بلب اپنی زرد پیلی روشنی سے پوری گلی کو روشن کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بلب جھلمل کرنے لگا جیسے جھیل میں کسی نے کنکری پھینک دی ہو۔ میرے قدم رکنے لگے۔ کہاں ہے یار تیرا گھر؟ میرے ایک ساتھی نے پوچھا۔ اس آواز نے مجھے جذبات کی جھیل سے نکال لیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور بلب ان میں تیر رہا ہے۔ میرے وجود میں چھناکا سنائی دیا۔ آئینہ دل ٹوٹ گیا۔ بچپن، لڑکپٹن، قد کڑے کہکے پھوٹ گئے اور ان کے ٹکڑے گلی میں بکھر گئے، اور ان ٹکڑوں سے میرے باپ کی شبیہ نکلی۔ میرا خون ابلنے لگا۔ اس شخص نے میرے دل کا آئینہ توڑ ڈالا تھا۔ آ گیا ہے، میں نے اپنے ساتھی سے کہا۔ وہ 5واں مکان ہمارا ہے۔ میرا وجود جذبات کی جھیل سے نکل آیا اور میری آواز میں اور میرے وجود میں جان آ گئی تھی۔ کیا نام بتایا ہے اس کا؟ میرے ایک ساتھی نے پوچھا۔ شہناز۔ وہ بہت خوبصورت ہے۔ گلشن آرا سے زیادہ خوبصورت ہے، میں نے جواب دیا۔ اب وہ ہماری ملکیت ہوگی، اس پر رحم نہیں کرنا۔ رحم؟ ایک اور ساتھی نے کہا۔ رحم کیا ہوتا ہے؟ تینوں ہنس پڑے۔ اپنے باپ کو میں خود قتل کروں گا، میں نے کہا۔ میں اسے ترسا کر اور تڑپا کر ماروں گا۔ تم شہناز کو ہمارے حوالے کر دینا، پھر چاہے سارے محلے کو قتل کر دینا، میرے ایک اور ساتھی نے کہا۔ ہمارے مکان کے 2 طرف گلی تھی اور پچھواڑے میں کھنڈر جیسا ایک مکان تھا۔ اس کی ایک دیوار عجیب طریقے سے ٹوٹی اور گری ہوئی تھی۔ میں جب 6-7 سال کا ہوا تو میں ادھر جا کر اس دیوار پر ہاتھ اور پاؤں جما کر اپنے مکان کی چھت پر چلا جایا کرتا تھا۔ 2-3 بار میری ماں نے دیکھ لیا تو مجھے بہت ڈانٹا تھا، اور ایک بار اس نے میرے باپ کو بتایا کہ میں اتنی خطرناک دیوار پر چڑھ جاتا ہوں۔ باپ نے مجھے 2 تھپڑ مارے تھے اور پچھواڑے جا کر وہ دیوار دیکھی تھی۔ اوے شیطان، واپس آ کر، باپ نے مجھے کہا تھا۔ تو اتنی مشکل اور خطرناک دیوار پر چڑھ کس طرح جاتا ہے؟ اس نے میری ماں سے کہا تھا۔ یہ تو ڈاکوؤں کی کرتب دکھا رہا ہے۔ اس کے 4-5 ماہ بعد میری ماں مر گئی تھی۔ اس عمر میں ڈاکوؤں کے متعلق اتنا ہی جانتا تھا کہ درندوں جیسے انسان ہوتے ہیں جو مال و اسباب لوٹ کر اور سب کو قتل کر کے جنگلوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ میری ماں نے میرے باپ سے کہا تھا کہ اس مکان کے مالکوں سے کہے کہ اس دیوار کو گرا دیں۔ یہ ہمارے مکان کے لیے خطرناک تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے باپ نے اس مکان کے مالکوں سے بات کی تھی یا نہیں۔ اس وقت یہ مکان غیر آباد تھا۔ میں اسی دیوار سے اوپر جانا چاہتا تھا۔
मालूम नहीं था कि इन 2.5-3 बरसों में वो मकान गिरा दिया गया है या नहीं। अगर गिरा दिया गया था तो फिर अपने मकान में दाखिल होने का कोई और रास्ता देखना था। मैं मकान के पीछे गया। मकान अभी तक खंडर पड़ा था और वो दीवार भी वैसी ही थी। अपने दरवाजे को देखना कि खुला है या बंद बेकार था। दरवाज़ा अंदर से बंद ही होगा। मैं टूटी हुई दीवार पर चढ़कर अपनी छत पर चला गया। हमारा आधा मकान 2 मंजिला था। उस तरफ एक ही मंजिल थी। मैं उसकी छत पर चढ़ गया। आगे सीढ़ियाँ थी, उनसे उतरकर नीचे गया। मैंने खंजर हाथ में ले लिया था। मुझे ख्याल आया कि शहनाज का वो आशना जिसने मुझे अगवा कराया था शहनाज के पास आया हुआ हो तो कितना ही अच्छा हो। मैं सहन में से गुजरा। मेरा घर खामोश था। चांदनी के सिवा कोई रोशनी नहीं थी। मैं डेवड़ी में गया और बाहर वाले दरवाजे की चटकनी खोल दी। मेरे 3 साथी अंदर आ गए। मैंने उन्हें बरामदे में खड़ा किया और बाप के सोने वाले कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाज़ा खुल गया। कौन हो? बिल्कुल नहीफ सी मर्दाना आवाज़ आई, जैसे ये बहुत दूर की आवाज़ थी। मुझे मालूम था सोच कहाँ है। मैंने उस पर हाथ मारा और बल्ब ने कमरा रोशन कर दिया। कमरे में बदबू थी। उस कमरे में तो अतर की खुशबू होनी चाहिए थी। उस घर में जवान, खूबसूरत और शोबाज बीवी थी, लेकिन वो बीवी नजर ना आई। एक पलंग खाली था। दूसरे पलंग पर लाश सी पड़ी थी। उससे आवाज़ आई थी, कौन हो? शहनाज, इधर आओ। इतनी करीब से आती हुई आवाज़ें बहुत दूर की आवाज़ें लगती थी। मैंने आगे होकर देखा। उफ मेरे खुदा, मैं क्या देख रहा था? वो मेरा बाप था। चेहरा लाश की मानद सफ़ेद और सूखा हुआ, दाढ़ी बड़ी हुई। उससे तो उठा नहीं जाता था। कौन हो? सिकंदर, मैंने कहा, तुम्हारा अकलौता बेटा। कहाँ है तुम्हारी लाडली दुल्हन? सिकंदर, अब उसने जानदार आवाज़ में कहा, ओह, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मेरा जहन मुझे धोखा दे रहा है। सिकंदर जिंदा नहीं। मैं जिंदा हूँ, मैंने कहा। देख, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। कहाँ है वो? मैं इंतकाम लेने आया हूँ। मेरे बाप ने दोनों बाजू फैला दिए, लेकिन उठ ना सका। जज्बात की शिद्दत से वह रो पड़ा और मुझे अपने बाजुओं में लेना चाहता था, लेकिन मैं आगे नहीं हो रहा था। अपने किए की सजा भुगत रहा हूँ। मेरे बाप ने बड़ी मुश्किल से कहा, वो भाग गई है, घर खाली कर गई है, सब कुछ लूट कर ले गई है। 15-16 दिन हो गए हैं। मैं 1 महीने से बीमार पड़ा हुआ हूँ, मर रहा हूँ। मैंने अपने साथियों को अंदर बुलाकर कहा कि तमाम कमरों में घूम जाएं, ट्रंक खोल कर देखें और शहनाज को ढूंढें। मेरे बाप के बाजू अभी तक ऊपर उठे हुए थे और बाजू कांप रहे थे। अपना घर संभालो सिकंदर, उसने सरगोशी की। वो इस मकान के कागजात भी ले गई है। तुम्हारी माँ नहीं रही, तुम ना रहे, मेरे बाद मकान उसी का होगा। नहीं बोला जाता। बाप के सीने से लग जाओ और कह दो, अब्बा जान, मैंने आपको बख्श दिया है। बाप को देखते देखते मेरी चीख निकल गई। हाथ से खंजर गिर पड़ा और मैं बाप के बाजुओं में जा पड़ा। उसने मुझे बाप के बाजुओं के शिकंजे में ले लिया और मेरा सर चूमने लगा। मुझे उसकी हिचकी सुनाई दी और उसके बाजू ढीले पड़ गए। मैंने उसके बाजू में से निकल कर देखा। उसकी आंखें पथरा गई थीं। वो मर गया था। मेरा दिल उसकी आंखों की तरह पथरा गया। मेरे आंसू खुश्क हो गए। मैंने खंजर उठाया और अपने साथियों की तरफ गया। वो ट्रंक खोल चुके थे। उनमें पुराने कपड़ों के सिवा कुछ भी ना था। घर में एक पसीना पैसा तक ना था। वो मेरी माँ के कपड़े भी ले गई थी। मैं तमाम कमरों में गया, वीरानी और महज वीरानी। मेरे साथी बहुत मायूस हुए। मैंने बड़ी तेजी से उन्हें बताया कि क्या हुआ है। अब मुझे अपने बाप के खून का और अपने घर लौट जाने का इंतकाम लेना है, मैंने कहा। मैंने उन्हें बताया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तुम बच्चे हो, एक ने कहा, हमें मरवाओगे। मैंने उन्हें मनवा लिया। हम चारों वहाँ से निकले। मैंने बाप की लाश दोबारा न देखी। हम शहनाज के घर जा रहे थे। मेरे एक तजर्बेकार साथी ने बताया कि उस घर में किस तरह दाखिल होंगे। शहनाज का घर एक और महल्ले में था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर दरवाज़ा खुला। डेवड़ी की बत्ती जल रही थी।
दरवाज़ा शहनाज के छोटे भाई ने खोला था। मैं खंजर आगे करके अंदर चला गया और मेरे पीछे 3 नकाबपोश साथी अंदर आए। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ऊंची आवाज़ ना निकले, मैंने शहनाज के भाई से कहा, शहनाज को हमारे हवाले कर दो, वो तो 15-16 दिनों से लापता है। उसने डरे हुए लहजे में कहा। अंदर चलो, मैंने उसे धक्का देकर कहा। सबको जगा दो। हम उसके पीछे अंदर चले गए और घर के सब अफराद को गालियां देकर उठाया। शहनाज का एक और भाई, उसका बाप भी था। मैंने उसके माँ का गिरेबान पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। शहनाज कहाँ है? मैंने पूछा। किसी के साथ भाग गई है, उसने जवाब दिया। किसके साथ? कहाँ? ये तो मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने बड़ी जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। तुम्हें मालूम है? मैंने उसे ठुड्डा मारकर कहा। फौरन बताओ। घर के मर्द कांप रहे थे। डाकुओं की दहशत तो बेहोश कर दिया करती है। उन सब ने कस्में खाकर बताया, शहनाज किसी के साथ भाग गई है। उसकी माँ से मैंने कहा कि मेरे मकान के कागजात मुझे दे दे। हाँ बेटा सिकंदर, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। उसने कागजात मुझे दे दिए थे। वो कागजात ले आई और मुझे दे दिए। मेरी माँ का जेवर। सारे घर की तलाशी ले लो, उसने कहा। वो तो घर का सारा जेवर भी ले गई है। अब सुन लो, मैंने कहा, हम उस घर की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। हमारे जाने के बाद ज़रा सा भी शोर ना हो। मेरा बाप मर गया है। सुबह उसका कफन दफन बड़ी इज्जत से तुम लोगों ने करना है। अगर ज़रा सी भी कमी बेशी हुई तो सब कत्ल हो जाओगे। मेरे मकान को ताला लगा देना और अपनी ज़ुबानों पर भी ताला लगा लेना। उन्होंने हाथ जोड़ दिए और हम वहां से निकल आए। चलो दोस्तों, मैंने साथियों से कहा, वापस चलते हैं। मैं अब शहनाज को ढूंढूंगा। मेरे साथी खुश नहीं थे। हम रेलवे स्टेशन पर चले गए। मेरे जहन पर शहनाज सवार थी, उसे ढूंढना था। वापसी के सफर में मेरे ऊपर बुर्का नहीं था। मैं अब पठान औरत नहीं, मर्द था। लेकिन गाड़ी के मुसाफिर फिर भी मुझे घूर घूर कर देखते थे। बाज की नज़रें वैसी ही थी जैसे उनकी होती हैं, जो शहरों में राह जाती लड़कियों को देखा करते हैं। मैं जब उनकी तरफ देखता था तो वो मुंह फेर लेते थे, जैसे मैं उन्हें चोरी करते पकड़ लिया हो। वो मुझे खूबसूरत लड़का समझ रहे थे। चेहरे और जिस्मानी ढांचे से मैं लड़का ही लगता था, लेकिन मैं बालग हो चुका था। जिस्मानी लिहाज से मैं उतना ही बालग हुआ था जितना होना चाहिए था। ज़हनी तौर पर मैं उम्र के लिहाज से बहुत बालग हो गया था। बल्कि कभी तो मुझे शक होता था कि मैं पुख्ता कार हो गया हूँ और ये जो 2 आदमी मेरे साथ हैं, ये मेरे शागिर्द हैं। वो दोनों तजर्बेकार डकैत और राहज़न थे। वो दोनों भी मुझे घूर रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें दूसरे मुसाफिरों से मुख्तलिफ थीं। उन दोनों की नज़रों में वो गुस्सा था जो वो अपने अंदर दबाए हुए थे। उन्हें कुछ भी वसूल नहीं हुआ था। मैं उन्हें साथ लाया था तो उन्हें शहनाज के हुस्न और जिस्म जमाल की तफसील सुनाई थी, जो उन्होंने बड़े इश्तियाक से सुनी थी। मैंने उन्हें कहा था कि शहनाज तुम्हारी होगी। मुझे तो शहनाज से इंतकाम लेना था। मैंने उसे कत्ल नहीं करना था, बल्कि अज़ियतनाक मौत मारना था। ऐसी मौत कि वो मरे भी नहीं और जिंदा भी ना रहे। मेरे उन साथियों को तवक्का थी कि नकद माल मिलेगा और जेवरात की शक्ल में कुछ सोना भी मिल जाएगा, मगर कुछ भी ना मिला। मैं अपना ही घर लूटने गया था। वहां मरे हुए बाप के सिवा कुछ ना मिला। शहनाज के घर गए तो वहां से भी खाली हाथ निकले। अगर हम पकड़े जाते तो चोर और डकैत कहलाते। मेरे साथियों ने मुझे बड़ी सख्त और तंजिया बातें कही थी। अगर ताजे की मुझ पर नजर करम ना होती तो ये दोनों मेरे साथ ना जाने कैसा सलूक करते। उनका गुस्सा बेजा नहीं था। पहले तो मैंने शहनाज से अपने अगवा का और ज़लीलो ख्वार होने का इंतकाम लेना था, लेकिन अब मैं अपनी ज़िल्लत भूल गया था। अब मुझे अपने बाप का इंतकाम लेना था। मैं दिल में अपने बाप के लिए दुश्मनी और नफ़रत लेकर गया था, मगर उसे जिस हालत में देखा, वो जिस तरह उसने जान दी, उससे मेरे दिल से नफ़रत निकल गई और उसकी जगह मोहब्बत आ गई। और ये मोहब्बत इंतकाम की ऐसी आग बन गई जो बातों से और अपने आप को समझाने से सरूर नहीं हो सकती थी। मुझे बाप याद आने लगा। मैंने उसकी यादों को जहन से उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका।
आंखों में आंसू तैरने लगे। एक मुअम्मर आदमी मेरे सामने बैठा था। वो उम्र के लिहाज से बहुत बड़ा था। उसकी दाढ़ी का एक बाल भी काला नहीं था। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, लेकिन लिबास और सर पर लपेटी हुई पगड़ी से वो बड़ा आदमी नहीं लगता था। वो बड़ा आदमी हो भी नहीं सकता था, क्योंकि वो 3rd क्लास में सफ़र कर रहा था। वो मेरे करीब सिरकाया।